So hello and welcome everyone. Welcome to the lecture number 8 of periodic table under the inorganic chemistry series. I am Sampriti Mehra, second year undergraduate currently pursuing BS chemistry at IIT Kharagpur, and you are watching Chemistry Authors Pathshala by IITians. As I had promised in my last lecture, we had learnt about ionization enthalpy, its various factors affecting ionization enthalpy. राइट एंड लॉट मोर अदर कॉन्सेप्ट्स वर ऑल्सो डिस्कस, बट टुवर्ड्स द एंड हमने बेसिकली डिस्कस किया था अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, इट्स डेफिनेशन, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो बेसिकली what is the agenda of today's lecture? Let me tell you that. So in today's lecture I have planned that we are going to cover firstly application of ionization enthalpy. Second, we are going to solve some examples, some questions, and those are extremely important questions on ionization enthalpy. ठीक है? Once we do all this stuff, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे and we will discuss about other topics we are going to do. ठीक है? तो please बने रहिए till end of the video so that you guys don't miss any important concepts. Okay? So चलिए start करते हैं. So this is the application of ionization energy. तो first क्या होता है कि if the value of ionization enthalpy is low, अगर ionization enthalpy का value low होता है तो उसका क्या मतलब होता है? That it is easy for that atom to lose electrons, and the elements which easily lose electrons, the elements which easily lose electrons are electropositive in nature, they are metallic in nature, and they are basic in nature. है ना? यही होता है, जो easily electrons give up कर दे वही metallic होते हैं, and they show basic character and they are said to be electropositive. Clear? तो first point clear हो गया. Second point, low ionization enthalpy indicates more reactivity in nature by losing electrons. Obviously लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा तो इट विल बी मोर रिएक्टिव बिकॉज ये ईजिली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है. अच्छा, यहाँ पे ये जो मोर रिएक्टिव वाला बात है ना, दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मेटल्स. वाई इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मेटल्स? क्योंकि मेटल्स के केस में हम मोर रिएक्टिविटी देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि कौन कितना ईजिली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है. राइट? Second point is also clear. Coming to the third point, low ionization enthalpy indicates its reducing power is high. Reducing power high होने का मतलब क्या होता है कि ये दूसरे एलिमेंट्स को बहुत easily it can give electrons, it can lose electrons. क्योंकि reducing power का मतलब क्या होता है? मतलब its reducing power is high means it undergoes oxidation. ये दूसरों को reduce करता है, मतलब क्या है कि ये खुद अंडरगो करता है ऑक्सीडेशन. सो फिर अंडरगोस ऑक्सीडेशन मतलब क्या है कि इट ईजिली गिव्स अप इलेक्ट्रॉन, बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेते हैं. सो दे एक्ट एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो अगर आप यहाँ पे देखो सोडियम फॉलोड बाय पोटेशियम, हाँ एक चीज़, व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, है ना? यही होता है. तो इसका मतलब अगर मैं सोडियम से पोटेशियम से रूबी दैट आरबी से सीजियम यहाँ तक आती हूँ, एज आई गो डाउन इन द ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, द रिड्यूसिंग पावर शुड इंक्रीज. राइट? अच्छा, बट इफ़ यू ऑब्जर्व हेयर, जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे, प्लीज़ सी दिस वेरी केयरफुली. यहाँ पे आपका लिथियम सबसे आगे है. बट बॉस, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ग्रुप में नीचे जाओगे तभी तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ना चाहिए, बट लिथियम का सबसे ज़्यादा है रिड्यूसिंग पावर. लेट मी टेल यू, लिथियम का जो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, दिस इज इन एक्वस फॉर्म. मतलब दिस ऑर्डर, ये जो मैंने लिखा है इस ऑर्डर में जो आपका लिथियम सबसे आगे आ रहा है, दिस इज इन इट्स एक्वा स्टेट. इन इट्स एक्वा स्टेट lithium is the best reducing agent among the alkali metals. क्यों होता है ऐसे?
because lithium has high hydration energy. So lithium has high hydration energy. Clear है? So because of its high hydration energy, lithium का reducing power काफ़ी ज़्यादा होता है as compared to बाकी alkali metals in case of aqueous solution. Clear होगी ये बात? Next आ जाते हैं. High ionization enthalpy indicates. हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या इंडिकेट करता है कि आइदर इट इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, क्योंकि मेटल, सॉरी मैं पता नहीं मेटल की बोल रही हूँ. हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट क्या करता है कि आइदर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आप स्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगा, और इट कुड बी अ केस कि आपका एलिमेंट जहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी वेरी वेरी कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेट्स दैट ईदर इट इज़ इनर्ट गैस और अ हैलोजन. ऑब्वियसली क्योंकि इनर्ट गैस के केस में उसका क्या होता है, स्टेबल होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, तो अगर आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट विल बी extremely hard for you. And next is halogen. Obviously halogens are electronegative in nature, so they don't want to give up electrons. तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है because they are very electronegative, right? और वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, so that will be better for them. So they are reluctant to lose electrons basically. Clear होगी ये बात? Let's come to the last point. The last point says sudden jump of successive ionization enthalpy. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये पढ़ाया था कि जहाँ पे भी आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सक्सेसिव, जो आपकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है ना, उनमें से किसी भी स्टेज पे अगर सडन जंप आ रहा है, दैट मीन्स कि यू आर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स स्टेबल और फ्रॉम इट्स स्टेबल स्टेट, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है एंड आप जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो उसके ऑक्टेट को डिस्टर्ब कर रहा है. इसका मतलब उस पर्टिकुलर स्टेज पे ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, उसका वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो गया है, तो वही उसका स्टेबल स्टेट है. क्लियर होगी ये बात? सो आई होप अभी तक आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको एप्लीकेशंस बताए ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, I hope these all are clear to you guys, right? So now let's come to the next part. Let's talk about the examples. So first, sodium plus. Now sodium plus is a more stable neon configuration. I already told you. Yeah. So basically sodium plus is a more stable neon configuration after losing one electron, है ना? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था वैसे सोडियम का एग्जांपल, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अप द एग्जांपल ऑफ सोडियम. इफ़ यू वांट यू कैन गो विजिट द प्रीवियस लेक्चर, वहाँ पे जाकर आप सोडियम का एक एग्जांपल दे सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि आपको कैसे पता चले कि सोडियम की वैलेंसी क्या है. जस्ट फ्रॉम योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देख के ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी. तो उसके लिए मैंने आपको सोडियम का केस समझा दिया था. क्लियर है? नाउ लेट्स सी द केस ऑफ एल्यूमिनियम. अब इस वीडियो में आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है? अच्छा, एल्यूमिनियम के केस में देखो, ध्यान से देखना, डेटा से समझाऊंगी तो लुक एट द डेटा वेरी वेरी केयरफुली. मैं इसको ना थोड़ा जूम इन कर दे रही हूँ एंड आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा. तो यार ये देखो, एल्यूमिनियम के केस में आपको जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, हाँ, एल्यूमिनियम के केस में आपको जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है? देखो 580 है ना? अच्छा, 580 है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस के लिए. अब एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम 2 प्लस के लिए कितना हो रहा है? 1815. कितना जंप हुआ? फर्स्ट से सेकंड का जंप कितना हुआ बताओ? देखो फर्स्ट से सेकंड का जंप बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट
अराउंड 3 टाइम्स, लाइक 3 टाइम्स थोड़ा कम हो गया, 4 थोड़ा, हाँ अराउंड 3 टाइम्स कह सकते हो, अराउंड 3 टाइम्स, है ना। ओके अब सेकेंड से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, सेकेंड से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे आप, तो अब जंप कितना हुआ, अराउंड आई गेस 900 ऐड करके आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है जंप, है ना, बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। अगर आप यहाँ पे आई गेस 900 ऐड करोगे तो अराउंड यही आ रहा है आपका आंसर, है ना। अराउंड 900 ऐड करके ये आ रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। यहाँ 3 टाइम्स था, यहाँ 900 है, बहुत ज़्यादा जंप नहीं है एकदम। बट क्योंकि आप देखो ना 580 है, 580 से 1815 3 टाइम्स जंप हुआ। अब 1815 से यहाँ पे 2700 के आसपास हुआ, यानी ये इसमें भी अपने 900 प्लस किया तो ये आ जाएगा अराउंड अबाउट। अच्छा उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी में जब आप आओगे, जस्ट लुक एट इट, आपका पहले क्या था 2700 के अराउंड था, अब 11,000 हो गया भाई, मतलब यहाँ पे 2700 था, 2000 के अराउंड था, और वहाँ से एकदम आंकड़ा कहाँ पहुँच गया यहाँ, क्योंकि आप यहाँ देखो ना, ये 1800 है, ये 2700 है, ये 11,000 हो गया। सो यहाँ पे जंप कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो जहाँ पे भी आपका जंप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे आपने कंसंट्रेट करना है। तो सिंस एल्यूमिनियम 2+ से एल्यूमिनियम 3+ का जंप बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे आपने फोकस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जंप बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब इसके बाद अगर आप फर्दर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट। तो यानी यहाँ तक ही इसका वैलेंस शेल, मतलब इसका जो ऑक्टेट है, स्टेबल स्टेट है, वो अचीव हो चुका है। इसका मतलब हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका एल्यूमिनियम 3+ था, एल्यूमिनियम 3+ जो आपके पास में क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद जो उसका फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी आया, मतलब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी का जंप इट्स ह्यूज। यानी ये जो फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये फोर्थ टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना फ्रॉम द वैलेंस शेल, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फेवरेबल। यानी ये जो आपका फोर्थ जंप है, फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी है, दिस इज़ नॉट वायबल, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो यानी आपका जो थर्ड आयनाइजेशन था वहाँ तक ही इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है, आपने इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला है फॉर द फोर्थ जंप। इसका मतलब 3 ही जंप इसके लिए सस्टेनेबल है। दैट मीन्स यही तक इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है वैलेंसी। क्लियर हो गया, क्लियर। सी आपने देखना कहाँ पे सडन जंप हो रहा है, यहाँ पे आप देखो ना वैल्यू का सडन जंप हो गया, कहाँ 2700 था, कहाँ 11,000 हो गया। तो जहाँ पे सडन जंप आया तो वो वहाँ पे चीज़ें फेवरेबल नहीं होंगी, क्योंकि अगर आपको इतना ज़्यादा ह्यूज एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े, वो कभी भी आप सोचो ना, इट विल नेवर बी फेवरेबल। तो जो आपका फोर्थ जंप होगा वो फेवरेबल नहीं होगा, इसलिए 3 ही जंप पॉसिबल है। यानी इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, क्योंकि आपका एल्यूमिनियम 3+ ही स्टेबल हो रहा है। सो आपका स्टेबल स्टेट एक्चुअली एल्यूमिनियम 3+ है। तो इस केस में इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे ना वैलेंस शेल में, वही से हमने देख लिया। क्लियर है, ओके। तो अभी तो मैंने आपको जो ये एग्जांपल बताया, इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं बताई आपको कि यार कितना वैल्यू का जंप हो तो आप इसको बिगर जंप मांगोगे, है ना। आपके दिमाग में ये हो सकता है कि मैम डिफरेंस क्या 2 टाइम्स हो तब उसको ज़्यादा मानते हैं, 3 टाइम्स हो तब ज़्यादा मानते हैं, कब ज़्यादा मानते हैं। तो उसके लिए एक वैल्यू है बेसिकली, मतलब मोर और लेस कैलकुलेशन पे ये आ ही जाता है। आपने याद रखना, मतलब ध्यान में रखना है आपने इसको
वैसे ईजी है, यू विल डू कपल ऑफ क्वेश्चंस, आपको एकदम हो जाएगा, बट अभी सिंस यू आर स्टार्टिंग आउट न्यू, बेसिकली अराउंड 1450 और हाँ यूनिट्स है किलो जूल पर मोल, तो अगर कोई और यूनिट हो तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू द यूनिट कन्वर्जन। तो बेसिकली अगर दो सक्सेसिव एनर्जीज में, दो सक्सेसिव आयनाइजेशन थेरेपीज में, एक सेकेंड हाँ, तो बेसिकली इफ द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी is more than 1450 kilojoule per mole, then the lower oxidation state would be said to be stable. मतलब क्या है कि मान लो ये एक आयनाइजेशन थेरेपी है और ये एक आयनाइजेशन थेरेपी है, ये किसी स्टेट x पे है, ये किसी स्टेट y पे है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंस इन आयोनाइजेशन थेरेपी इन दोनों में अगर it is greater than 1450 किलोजूल पर मोल, तो उस केस में जो भी आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही स्टेबल होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख सकते हो। मतलब इस केस में अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो इस x और y में से जो भी आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मान लो अगर मैंने आपको बोला x इज लोअर देन y, तो x इज गोइंग टू बी स्टेबल। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। एक और मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ है इन केस ऑफ लिथियम। तो लिथियम के केस में इसका फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी इज 520 किलोजूल पर मोल, सेकंड कितना है 700 के आसपास है ना, 7000 के आसपास। डिफरेंस क्या 1450 के अराउंड है? हाँ नहीं, बोलो डिफरेंस क्या 1450 के अराउंड, मतलब आई मीन टू से 1450 के आसपास नहीं, उससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। आप देखो ना 1450 अगर आप यहाँ ऐड करते हो इसमें 1450, उससे कई ज़्यादा है आपका सेकेंड आयनाइजेशन थेरेपी। इसका मतलब इसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ गोइंग टू बी द स्टेबल, तो यही लोअर है आयनाइजेशन थेरेपी 1, फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी यही लोअर है, तो यही स्टेबल होगा। यानी इसमें आपका लिथियम प्लस इज गोइंग टू बी स्टेबल। लिथियम प्लस हुआ मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, उसी को लूज किया, राइट? सो दैट इज द थिंग। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, बट बिफोर आई डू दैट लेट मी टेल यू वन थिंग। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्वेश्चन सारे क्लियर हो चुके हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन सो दैट आई गेट सुपर मोटिवेटेड, एंड ताकि मैं सेशन को कंटिन्यू करूँ एंड माई टीम ऑल्सो गेट्स मोटिवेटेड। ऑलराइट, अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर आई प्रोसीड, प्लीज़ गो टू द if you haven't subscribed to our channel yet, please go to the home page of our channel. वहाँ पे जाके प्लीज़ hit the subscribe button and also the bell icon next to it. अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपका? फ़ायदा आपका ये होगा कि you will be always notified whenever we post any videos या कोई भी important notifications आपके किसी भी चीज़ के related हो, concepts के related हो, chapters के related हो, subjects के related हो, that you will get instantly. So you will not miss out on any notifications. Plus it will help to support the channel a bit. It's completely free, right? अच्छा, उसके बाद please go to the playlist section of our channel, जहाँ पे you would see there are 2 playlists currently. Currently, my father is teaching chemical bonding. He is also an alumni of IIT Kharagpur, and he is teaching chemical bonding. So, lot of lectures have been already uploaded अंडर द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, पीपल आर लविंग इट, सो प्लीज़ 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 चेक आउट। एंड सेकेंड इज़ मेरा भी पीरियोडिक टेबल का फुल प्लेलिस्ट चल रहा है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ लॉट ऑफ लेक्चर्स। सी, ये लेक्चर नंबर 8 है, तो 7 लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन पोस्टेड ऑन द चैनल, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। एंड येस, लोग अपने डाउट्स भेज रहे हैं मुझे वाया मेल, तो you also have any doubt, तो you are feel free to mail me or comment in the comment box below,
I always read all the emails and I read the comments. And one more चीज़, the questions which I am going to take in today's lecture, उसमें से कुछ तो मैंने खुद ने सिलेक्ट किए हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन सेंट बाय यू गाइज ओनली. तो कुछ क्वेश्चंस लेट मी चेक, हाँ लेट मी चेक, एक सेकेंड, मैं एक बार ईमेल आईडी खोल रही हूँ, ईमेल बॉक्स. ओके, सो वन ऑफ द क्वेश्चन वॉज सेंट बाय मिया घोष. सेकेंड वॉज, हाँ 2 क्वेश्चंस रोहन ने भेजे थे और एक सीमा ने भेजा था. सो इफ यू गाइज आर देयर, तो उन लोगों को पता होगा उन्होंने क्वेश्चंस भेजे थे. तो दोज क्वेश्चंस आई हैव टेकन अप इन टुडेज लेक्चर, तो वो भी हम देखेंगे. तो प्लीज़ बने रहिए एंड तक. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में टाइप क्या है? तो पहला टाइप है द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन इन अ पीरियड, ग्रुप और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. यानी कि आपका जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हम उसकी बेसिस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं. इसके अंडर काफ़ी क्वेश्चंस है, तो ये हमारा टाइप 1 है. क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है. सो द क्वेश्चन इज विच हैज़ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अच्छा, ये आपको ना ग्रुप्स में गिवन है. जैसे ए पार्ट में पोटेशियम है, आर्गन, दोनों में से किसका ज़्यादा है. बी पार्ट अलग है, सी पार्ट अलग है, तो इस तरह से. तो पहले हम ए पार्ट डिस्कस करते हैं, पोटेशियम एंड आर्गन. प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट योर सेल्फ. ये चारों पार्ट्स आप खुद से करो, उसके बाद ही यू कैन रिज्यूम द वीडियो एंड वी कैन सॉल्व इट टुगेदर. तो पहले खुद से करो. बिटवीन योर पोटेशियम वर्सेस आर्गन, दोनों में से व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी दोनों में से विच हैज़ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो हमेशा पहले जब भी आपने इन चीज़ों को कंपेयर करना है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो भी कोई भी आपको पीरियोडिक ट्रेंड कंपेयर करना है, द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज़ कि पहले आप जनरल ट्रेंड देखो. डोंट जम्प टू एक्सेप्शंस फर्स्ट. हमेशा मेक इट अ रूल कि हमेशा यू विल चेक कि रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से क्या हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द रेगुलर ट्रेंड ऑर्डर क्या होना चाहिए. उसके बाद आप देखो कि क्या इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर फैक्टर ऑल्सो कमिंग इन टू कंसिडरेशन. क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे बिटवीन पोटेशियम एंड आर्गन, इफ यू सी, पोटेशियम इज इन ग्रुप नंबर 1 and like potassium is in group number 1, argon is in group number 18, right? And they are in the same period or not? No, they are not in the same period, because potassium is in the 4th period and argon is in 3rd period. Okay, so now you see one thing. We know when we go from left to right in a period, now पोटेशियम सी इसको ना आप पीरियोडिक टेबल में देख लो कि इसकी पोजीशंस कहाँ पे है. आपका पोटेशियम लाइक दिस इज़ द, मान लो 3rd पीरियड है, ये आपका 4th पीरियड है. ओके, ये 1st ग्रुप है, ये 18th ग्रुप है. तो जो आपका 3rd पीरियड है उसमें जो 18th ग्रुप के अंडर आपका आर्गन आता है, राइट. एंड जो आपका 1st ग्रुप है उसके अंडर जो 4th पीरियड है उसमें आपका पोटेशियम आता है. ठीक है, राइट. सो हमें इन जनरल क्या पता है? हमें इन जनरल पता है कि व्हेन वी गो, अगर आप ग्रुप वाइज भी देखो, कि ग्रुप वाइज देखो, आप 1 to ग्रुप नंबर 18 जाओगे, आप ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 18 जाओगे. व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, द रेडियस शुड डिक्रीज, मतलब द आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज. The ionization enthalpy should increase when we go from group number 1 to 18, right? Because Z effective बढ़ता है जैसे ही you move from left to right in the periodic table, right? So your ionization enthalpy increases. So now when your ionization enthalpy increases, that means अगर हम खाली ये इफेक्ट भी देखें तो उसके हिसाब से भी आपका आर्गन should have higher ionization enthalpy as compared to potassium.
आई होप दिस इज क्लियर. नाउ देयर इज वन मोर वे टू सी इट कि आर्गन इज बेसिकली इनर्ट गैस एलिमेंट, राइट. Argon is basically an inert gas element, and being an inert gas element, since argon is an inert gas element, तो inert gas में से आपका इलेक्ट्रॉन निकालना it's hard. Why? Because inert gas elements, they have stability, they have fully completed octet, they are in the stable state. तो removing an electron from inert elements, from noble gases, requires lot of energy. So as a result, the ionization enthalpy of argon is greater than potassium. Clear हो गया? So I hope A part has been clear to you guys. Now let's come to the next part. Carbon and nitrogen. Carbon versus nitrogen. Now carbon and nitrogen, again this is group number 12, this is group number 15, right. And when we go from left to right, like carbon and nitrogen, they are in the same period. Okay, ये आपका ग्रुप नंबर, सॉरी ये आपके पीरियड नंबर किस में आते हैं, दे कम इन योर सेकेंड पीरियड ओनली, राइट. तो सिंस दे कम अप इन योर सेकेंड पीरियड ओनली, एंड लाइक when you go from left to right, group number 12 से group number 15, when we are moving from left to right in the periodic table, the ionization enthalpy increases, as I have already explained. पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. तो इसका मतलब नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कार्बन. ये तो जनरल ट्रेंड से ही आ रहा है. अब एक और चीज़, सिंस यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन एडजेसेंट है, तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि कहीं यहाँ कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर तो नहीं लग रहा. तो लेट्स सी कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर लग रहा है कि नहीं. तो यार तो एक्स्ट्रा फैक्टर के लिए लेट अस सी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. तो नाइट्रोजन के केस में इफ़ यू सी, इट हैज़ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स. इसके केस में इसका जो p ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है. It has half filled orbitals. एक सेकेंड, इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है ना 2p3, मतलब एनीवे np3 होता है, तो हाफ फिल्ड होता है. वेरस कार्बन का फुल फिल्ड नहीं होता है, ठीक है. कार्बन का फुल्ली फिल्ड नहीं होता है. सो एज अ रिजल्ट अगेन नाइट्रोजन इज हैविंग अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. So it is much more stable as compared to carbon, and because of its stability, the ionization enthalpy of nitrogen is greater than carbon. तो दोनों, ये चाहे आप लेफ्ट टू राइट वाला देखो या आप ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी को देखो, दोनों तरीक़ों से ही योर नाइट्रोजन इज हैविंग हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन कार्बन. क्लियर होगी ये बात? ओके. So B part is also clear. Fluorine or chlorine? It's very simple. सोचो, अच्छा फ्लोरीन एंड क्लोरीन both of them belong to the 17 group. हमें पता है when we go from top to down in the periodic table, the ionization enthalpy decreases. तो क्लोरीन का ionization enthalpy should be less than फ्लोरीन का ionization enthalpy, राइट. क्योंकि when we go down your Z effective decreases, so ionization enthalpy भी डिक्रीज करता है. ओके, let's talk about indium and thallium. Indium and thallium, again they belong to the group number 13 of the periodic table. अच्छा, अब इसमें आप बोलोगे मैम ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, यानी अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन थैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लेस देन इंडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ये एक्सपेक्टेड होता है, ये एक्सपेक्टेड है, राइट.
हाँ मैंने भी एग्री कि ये एक्सपेक्टेड है. हाँ अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करो, बोथ ऑफ देम आर एडजेसेंट. तो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एडजेसेंट, तो इस केस में अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर रहे हैं या किसी भी पैरामीटर को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्योंकि ये एडजेसेंट है तो यहाँ कोई एक्सेप्शन होने की पॉसिबिलिटी है. तो इसीलिए हम खाली एक फैक्टर के बेसिस पे इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी शुड कंसिडर गोइंग फॉर अनदर फैक्टर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, राइट. तो इंडियम एंड थैली में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है? अगेन लेट्स सी कि यहाँ कोई इफेक्ट लग रहा है कि नहीं, ये कौन से पीरियड में है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है. तो अगर आप ध्यान से देखते हो, आपका इंडियम टू थैलियम जो होता है ना, इंडियम टू थैलियम लाइक योर दिस इज योर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, राइट. ऐसे होता है. ऊपर बोरॉन होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. सो यू सी थैलियम इज अ सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट. दैट मीन्स यहाँ पे आपका लैंथेनाइड इफेक्ट होगा, क्योंकि लैंथेनाइड इफेक्ट हैपन्स इन द सिक्स्थ पीरियड, राइट. तो यहाँ पे आपका लैंथेनाइड इफेक्ट होगा. तो बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड इफेक्ट क्या होता है? देयर इज अ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ द पोर शील्डिंग बाय एफ ऑर्बिटल्स. तो एफ ऑर्बिटल्स के पोर शील्डिंग की वजह से देयर इज अ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियस. एज अ रिजल्ट योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीजेस. तो एक्चुअली होगा क्या? एक्चुअली व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर देन? द फाइनल आंसर वुड बी कि थैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन इंडियम, राइट. एंड द रीजन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. इसी का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे, सो यू कैन ऑलवेज रेफर इट, इट्स ऑलवेज फॉर योर रेफरेंस. क्लियर है? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देयर सेइंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज सीन टू बी और इज ऑब्जर्व्ड टू बी लेस देन मैग्नीशियम although aluminum is placed on the right side of the periodic table in the same period. क्या हो रहा है ये बेसिकली? ये आपका ग्रुप 13 है, ये आपका ग्रुप 2 है ना. यहाँ पे पीरियड नंबर कौन सा होता है एल्यूमिनियम का? थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड होता है. तो थर्ड पीरियड में अंडर द सेकेंड ग्रुप यहाँ पे आपका आ जाता है मैग्नीशियम, एंड 13th ग्रुप में अंडर द थर्ड पीरियड आ जाता है आपका एल्यूमिनियम. नाउ दे आर सेइंग कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस. वो क्या कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस एज कंपेयर टू मैग्नीशियम. ऑल्दो वी कैन सी कि मैग्नीशियम तो लेफ्ट साइड पे है, तो मैग्नीशियम अगर लेफ्ट साइड पे है, इट इज़ एन एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट. ये लेफ्ट साइड पे है, तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, राइट. ये हमें जनरल ट्रेंड पता है कि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. बट इस केस में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इवन दो एल्यूमिनियम इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तब भी एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड टू बी लेस एज कंपेयर टू मैग्नीशियम. नो ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मैंने आपको हमेशा समझाया व्हेन एवर देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी या कोई एक्स्ट्रा फैक्टर अगर आपने देखना है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैक्टर तो नहीं ऑपरेट कर रहा, तो व्हेन इन डाउट ऑलवेज गो फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो चलो लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ ऑफ देम. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वेल, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2,
ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या होता है? हाँ, थिंक ऑफ इट। एल्यूमिनियम का अगर आप देखो, एल्यूमिनियम का 13 होता है ना, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 4 10 10 and 3, तो 3p1 यही है। तो लाइक वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे तो 3s2 3p1, मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, ये इनके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो नाउ इफ यू सी द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो इस केस में देखो, इसका इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो 3s2 से जाएगा। पहली बात, s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, सो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है? पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s ऑर्बिटल, वो ज़्यादा होता है। सेकेंडली, इट इज़ अ कंप्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, मतलब s में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है, तो 2 का जो मतलब s का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट नहीं, आई एम सॉरी, आई सेड ऑक्टेट, एक्चुअली व्हाट आई मेंट वाज कि s का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, s में 2 आते हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी फुल हो चुकी है, तो नाउ इट इज स्टेबल। तो नाउ टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर you have to disturb the stable state of this. So as a result, because of the stable orbital, इसका मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, लेट्स कंपेयर एल्यूमिनियम एज वेल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो P से जाएगा, तो P का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू S। ऑल्सो यहाँ पे P में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो P 0 हो जाएगा और 3s2 ही बचेगा, एंड ये एनीवे इट इज स्टेबल। S2 S में कंप्लीटेड है 2, तो एनीवे इट इज स्टेबल, राइट। सो एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, although आपका एल्यूमिनियम इज ऑन राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? So I hope this question is clear to you guys. So if this question is clear to you guys, please hit the like button so that I get motivated and I continue to take more and more questions of you people in my upcoming lectures as well. हाँ, तो ये explanation ही है, you can anyway go through it for revision. Okay, ये है type 2. Type 1 में what kind of questions we saw? In type 1 we saw the questions जहाँ पे आपको पूछा गया था कि compare the order of ionization enthalpies, कि कुछ आपको एलिमेंट्स दे दिए, उनके केस में आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो वो काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे आपके टाइप नंबर 1 में। बट इन टाइप नंबर 2 नाउ वी आर गोइंग टू सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्ट करना है किसी भी एलिमेंट के लिए, ओनली फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इट्स सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइड। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ, उसके बाद में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया। नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस। हाँ, तो सिलिकॉन हैज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो कि आपको गिवन है,
आपको वैल्यूज गिवन है इन किलो जूल पर मोल. अच्छा, इफ़ यू गाइस हैव सीन माई प्रीवियस लेक्चर्स, तो मैंने मेरे इसके जो प्रीवियस लेक्चर था, ये आपका लेक्चर नंबर 8 चल रहा है. तो लेक्चर नंबर 7 में आई हैड डिस्कस्ड a lot about ionization enthalpies, so please go and watch those lecture यार. See, if you go to our home page, वहाँ पे जाके ना click on the playlist button. जैसे आप playlist पे click करोगे, you would see कि periodic table वाला playlist है, तो इसको click करके आपको सारे videos दिख जाएंगे. You will get all the videos. तो ये सारे videos please go through them one by one so that things are extremely clear to you all. अच्छा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेडिक्ट करना है, दिस ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आई एम टेकिंग अप. अगर आपको डिटेल्ड में समझना है तो प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस लेक्चर्स. आप प्लेलिस्ट में जाके ही देख लो, मैंने टॉपिक के नाम के साथ भी दे दिया है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू गाइज टू फाइंड द लेक्चर्स. अच्छा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस इज ग्रेटर मतलब सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 1450 किलो जूल पर मोल, देन उस केस में आपका जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वही होता है स्टेबल. ठीक है, तो देखते हैं क्या है डिफरेंस. सो बेसिकली इफ यू सी, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपका 786 से ये जा रहा है, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. एक सेकेंड, हाँ क्या, तो फर्स्ट से सेकेंड का डिफरेंस देखो. इज इट 1450 से ज़्यादा? नो, 1450 से कम है. तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नो प्रॉब्लम. अच्छा, सेकेंड टू थर्ड इफ यू सी द डिफरेंस, द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 1450. मतलब अगर आप डिफरेंस देखो ना, तो ये डिफरेंस 1450 से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन. एक और देखते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं, नो प्रॉब्लम राइट. यहाँ पे भी थर्ड टू फोर्थ अगर हम कंपेयर करें तो द डिफरेंस इज अगेन नॉट ग्रेटर देन 1450. इज इट? बोलो. ऑब्वियसली नॉट, है ना. 1450 से तो कम ही है. फोर्थ टू फिफ्थ देखो, वेल इसमें डिफरेंस 1450 से बहुत ज़्यादा है. मीन्स द डिफरेंस बिटवीन योर फोर्थ टू फिफ्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 1450 किलो जूल पर मोल. तो इसका मतलब ये जो आपका जंप हुआ है, इन दिस जंप योर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी द स्टेबल स्टेट. तो फोर्थ टू फिफ्थ जंप में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? ऑब्वियसली 4 इज स्मॉलर देन 5 राइट. तो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? 4 राइट, 4. सो हेंस यहाँ पे आपका 4 प्लस इट्स गोइंग टू बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अब 4 का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है. So that means your number of valence electron in silicon is 4. Clear? Okay, next पे चलते हैं.
यहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है. Okay, so this is the next example. So next example of what they are asking is, from each set choose the atom which has the largest ionization enthalpy and you have to explain your answer. Okay, anyway it is a subjective question but like objective में आप आंसर दो कि if I ask you A पार्ट के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, 3 एलिमेंट्स गिवन है. इसमें से यू टेल मी विच ऑफ देम हैज़ द हाइएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो मैं यहाँ लिख रही हूँ मैक्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी. जिसका भी होगा उसका नाम यहाँ लिख देना है, ठीक है. वैसे ही बी पार्ट के लिए भी करेंगे. वाइल आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, हाँ खुद से ट्राई करो एक बार, उसके बाद वी विल डिस्कस इट टुगेदर. So basically if you see in case of A part, acha, whenever any question is given to you in the chapter periodic table ना, don't overthink questions. बाय ओवर थिंकिंग मेरा मतलब है हम हमेशा सोचते रहते हैं ना कि अरे ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड से सोचूं या इसमें कोई एक्सेप्शन लग रहा है, या मैं इसका क्या कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या इसमें कोई लेंथ एंड इफेक्ट या इनर्ट पेयर इफेक्ट कोई एक्स्ट्रा स्पेशल इफेक्ट लग रहा है. या डोंट गो इनटू सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टफ. ऑलवेज ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल. बाय कीपिंग थिंग्स सिंपल आई मीन ओवर थिंक मत करो. वेन एवर यू गेट एनी क्वेश्चन always proceed by the regular trend. तो देखो कि उस क्वेश्चन में रेगुलर ट्रेंड क्या है. once you solve with the regular trend, उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट तो नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ. then you can verify. clear? Now this is a pro tip for solving questions. Okay, so yeah, in case of this, see, the 3 of the elements belong in the same period only. All of them are in the second period. So we know in the same period when we go from left to right in the periodic table, your ionization enthalpy increases. So fluorine should have the maximum ionization enthalpy, right? फ्लोरीन का ही मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए. बट यहाँ पे आप लोग आर्ग्यू करोगे कि मैम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो यार नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड होता है, तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होना चाहिए, विच इज़ ऑब्वियसली दिस इज़ करेक्ट. बट मैंने आपको ऑर्डर नहीं पूछा है, ठीक है. अगर मैं इसका अगर मैं ऑर्डर पूछूँ ना, इसका अगर मैं ऑर्डर पूछूँ द ऑर्डर शुड बी दिस, the order should be this. The reason you guys already know, because nitrogen is having this half filled orbitals, जिसकी वजह से its orbitals are stable, so it has a higher ionization enthalpy as compared to oxygen. But fluorine is very electronegative. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है. एज ए रिजल्ट फ्लोरीन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है. ओके, लेट्स कम टू द बी पार्ट. तो ए पार्ट आई होप सबको क्लियर हो गया. लेट्स कम टू द बी पार्ट. मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आर्गन, डू दे बिलोंग इन द सेम पीरियड? यस दे डू. थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं तीनों. व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. तो ऑब्वियसली आर्गन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, देन फॉस्फोरस, देन मैग्नीशियम, है ना. ऐसा ही होना चाहिए. वैसे भी दिस इज अ नोबल गैस एलिमेंट, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो वैसे भी ज़्यादा होना चाहिए. सो डन क्वेश्चन हो गया, नो इश्यूज. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइस. तो आई होप आप लोगों को ए और बी पार्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया है. अच्छा, अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन सो दैट आई गेट टू नो कितने बच्चों को क्लियर हो गया.
is for you guys reference only. Yeah, question number 7th. Yeah, so question number 7th में क्या है? The first and second ionization enthalpies of magnesium is given. तो we have the element of magnesium. उसके लिए आपका first ionization enthalpy मतलब your ionization enthalpies are given. Well, this is your first ionization enthalpy. ये आपका second ionization enthalpy, ठीक है? Now what they have asked is find the amount of energy in kilojoule needed to convert all the atoms of magnesium to magnesium 2+. यानी कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट करना है, विच इज़ प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वेपर. तो इस क्वेश्चन को ना खुद से एक बार ट्राई करो. इफ़ यू गाइज डू ट्राई इट ऑन योर ओन, तो उसके बाद लेट मी सॉल्व इट. अच्छा, तो देखो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. यानी what is happening is कि आपका 1 mole of magnesium is changing to 1 mole of magnesium 2+, right? क्लियर है? तो पहले आप टोटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल लो कि टोटल एनर्जी कितना चाहिए. टोटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी which is 7.646 plus 15.035. ठीक है, ये आपने ऐड करके निकाल लिया वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैं वो वैल्यू एक बार देख लेती हूँ सो दैट आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाए. हाँ, द वैल्यू इज़, हाँ यहाँ देखो टोटल एनर्जी जो है ना, टोटल ionization enthalpy is basically 22.681 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं. अब ये जो एनर्जी है, दिस इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर 1 मैग्नीशियम एटम को मैग्नीशियम 2+ आयन में कन्वर्ट करने के लिए. मतलब एक मैग्नीशियम एटम को मैग्नीशियम 2+ गैस के एक आयन में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज द एनर्जी. ठीक है, मतलब फॉर 1 एटम, अच्छा लेट मी चेंज द कलर. फॉर 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम say 1 ion of मैग्नीशियम 2+ में ये कन्वर्ट हो रहा है. तो अब देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के लिए कितना होगा. एक्चुअली आपको 12 मिलीग्राम पूछा ना, तो बेसिकली 12 मिलीग्राम को यू कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ मोल्स. बेसिकली वही इन लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली किया हुआ है. मैं वही क्योंकि वाई हैव वी कन्वर्टेड, क्योंकि हम ना सब कुछ एटम्स में डील कर रहे हैं. तो इट विल बी ईजी फॉर अस कि अगर हमने एटम्स को मतलब जो ग्राम्स में है मिलीग्राम में, उसको भी हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया. तो इसलिए अगर आप यहाँ करोगे ना, 12 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज एक्चुअली 0.5 इंटू 10⁻³ मोल. वो आपको उस तरह आ जाएगा. तो फिर वहाँ पे टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस ओनली, बिकॉज दिस इज पर मोल ना. ये एक मोल के लिए एनर्जी है. ये एनर्जी आई विल टेल यू, वेट जस्ट अ सेकेंड. क्योंकि आपकी ये वाली जो एनर्जी है ना, टोटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, दिस इज इन द यूनिट ऑफ किलोजूल पर मोल. यानी 1 मोल के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए. तो 12 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी. तो 12 ग्राम को पहले आप मोल में कन्वर्ट करो. तो 12 ग्राम को वंस यू कन्वर्ट इन मोल, दिस कम्स टू दिस वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ तो टोटल एनर्जी क्या होगा, इतने मोल टाइम्स पर मोल का एनर्जी. क्लियर है? ठीक है, अभी बताओ द थिंग्स आर क्लियर और नॉट.
ठीक है, ठीक है, ओके। Okay, so few more questions. Sorry, yeah. The screen is visible, right? So just a few more questions, and we will be done with this concept. So yeah, this is example number 8. Please try it yourself. Pause the video and try it out yourself once. So basically, this is the graph which is showing the variation of atomic number with the ionization energy values. So basically आपका x axis is your atomic number and your y axis is your ionization energies, ठीक है. And एक second, yeah, as I was discussing, यहाँ पे बेसिकली इन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्या होगा. तो यानी जो सोडियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर इज 11, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा. तो विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है. तो ए पार्ट में पूछा है अबव नियॉन आएगा, मतलब ये जो आपको ग्राफ गिवन है ना, बेसिकली ये जो आपको ग्राफ गिवन है ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस द एटॉमिक नंबर, इस ग्राफ में सोडियम का पोजीशन कहाँ पे आएगा. तो अगर आप यहाँ देखो ऑप्शन ए में पूछा है विल इट बी अबव नियॉन, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि नियॉन इज नोबल गैस एलिमेंट एंड इट इज एट द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो अगर हम देखें सोडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो भी हो, इट विल सर्टेनली बी लोअर देन नियॉन. क्यों? क्योंकि व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड and neon is in the same period as your sodium, so when we go from left to right in the same period, your ionization enthalpy increases, and also neon is a noble gas element, तो इसके केस में ionization enthalpy should be higher. अच्छा, अब हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ. अगेन ऑक्सीजन इज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो अगर हम सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करें तो sodium would have lower ionization enthalpy as compared to oxygen, again because of the same thing, left to right wala thing. Now let's compare it with nitrogen. Again nitrogen is also towards the left of the periodic table. Also nitrogen has half-filled orbitals, so it has more stability. So nitrogen का ionization enthalpy should be higher as compared to sodium, right? अब अगर मैं कंपेयर करूँ लिथियम के साथ, तो लिथियम इज द सेकेंड पीरियड एलिमेंट, एंड लिथियम देखो, लिथियम और सोडियम दे आर इन द सेम ग्रुप, एंड इन द सेम ग्रुप व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. तो आपका सोडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लोअर देन लिथियम, राइट. तो फाइनली क्या है कि आपका सोडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लोअर देन लिथियम, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका पोजीशन फिर कहाँ पे फाइनली आ रहा है, इसका पोजीशन होगा बिलो लिथियम. दिस इज द करेक्ट आंसर, बिलो लिथियम. क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो चुकी है. ओके, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन. Okay, so I guess this is the last question for today, because इसके बाद रेस्ट ऑफ द चीज़ें वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जो भी क्वेश्चन सेंड किए थे उसका लास्ट क्वेश्चन यही है, और मैंने भी जौन सा सिलेक्ट किया था वो मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ. तो मोर ऑन लेस यहाँ तक ये क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया तो मोर ऑन लेस आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे for this topic those get super cleared, ठीक है. अच्छा चलो, having said that, क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से एक बार ट्राई करो, pause the video and try it out yourself once, then yeah. तो let us discuss with this question. इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, we have to like arrange these ions in the order of their sizes, right. तो यहाँ पे if you see
see, when you have to solve the questions regarding the order of the sizes, what we are gonna do is, एक चीज़ तो पहले आपको याद रखना है कि एनायन का साइज जो होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू साइज ऑफ कैटायन. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कैटायन के केस में आपका जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा होता है. कैटायन के केस में आपका जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज़्यादा होता है. एज अ रिजल्ट द रेडियस कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, इसीलिए ऑलवेज ये चीज़ हमेशा होल्ड करता है कि एनायन का साइज इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ कैटायन. ठीक है. नाउ दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर्स. सो इफ यू गाइज डोंट नो इट या आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम ASAP. तो यहाँ पे पहले आप देख लो कैटायंस कौन से हैं. तो कैटायंस आपका बेरिलियम 2+ है, राइट. बेरिलियम 2+ है. देन आपके पास में मैं इधर ही लिख लेती हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ. हाँ, यहाँ पे आपके पास में बेरिलियम 2+ है, सोडियम प्लस है और मैग्नीशियम 2+ है. तो ये तीनों क्या है? ये तीनों कैटायंस हैं. सो देयर साइज मस्ट बी स्मॉलर एज कंपेयर टू जो दूसरे एनायंस हैं. अच्छा, अब इन तीनों कैटायंस में भी आप कंपेयर कैसे करेंगे साइज को? तो उसके लिए कैसे करोगे? तो अब देखो बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम और सोडियम, इनमें से बेरिलियम लाइज इन द सेकेंड पीरियड एंड द साइज ऑफ अ सेकेंड पीरियड एलिमेंट is always smaller as compared to a third period element. Why? Because when we go from top to bottom in the periodic table, the size increases because of the increase in number of shells. आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है. एज अ रिजल्ट आपका साइज भी बढ़ जाता है. तो इतना हमें यहाँ से क्लियर होगा कि बेरिलियम 2+ का साइज सबसे ज़्यादा छोटा होगा इन सभी से, राइट. अच्छा, अब आती है बात सोडियम और मैग्नीशियम, इन दोनों में से किसका बड़ा होगा? तो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. नाउ इन केस ऑफ एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक वी हैव टू कंपेयर व्हाट? जेड इफेक्टिव. तो जब भी आपको दिखे कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो रहा है तो ऑलवेज कंपेयर द जेड इफेक्टिव. ठीक है. तो जैसे ही हम जेड इफेक्टिव को कंपेयर करेंगे, आप देखोगे कि सोडियम के केस में और मैग्नीशियम के केस में जो जेड इफेक्टिव कंपेयर करोगे, जेड इफेक्टिव इज Z/E. तो सोडियम प्लस का देखो क्या होता है Z/E, बताओ. 11/10. और मैग्नीशियम के केस में क्या होगा यार? 12/10. तो मैग्नीशियम का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो साइज कम होगा compared to sodium. yes. अब इसके बाद इधर क्या आएंगे? एनायंस आएंगे. तो देखते हैं अब एनायंस को. एनायंस को अगर हम ध्यान से देखें तो एनायंस में आपका क्लोराइड, सल्फाइड और ब्रोमाइड आयन है. अब इन तीनों में से एक चीज़ देखो, ब्रोमीन इज मतलब ब्रोमीन वो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा नीचे आता है इन द पीरियोडिक टेबल एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड सल्फर. तो इसका मतलब ब्रोमीन के केस में द नंबर ऑफ शेल्स आर मोर, एज अ रिजल्ट द साइज विल बी मोर. यानी कि ब्रोमीन का साइज सबसे बड़ा होगा, ब्रोमाइड माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा. ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है. नाउ अब बात आती है क्लोराइड और सल्फाइड में. तो यहाँ पे अगेन जेड इफेक्टिव कंपेयर कर लो. क्लोरीन का जेड इफेक्टिव होगा 17/18 है. इसका अच्छा Z/E आपको पता है ना, Z इज एटॉमिक नंबर, E इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन आफ्टर बिकमिंग एन आयन. तो सल्फाइड के केस में दिस इज 16/18. तो जेड इफेक्टिव क्लोराइड के केस में ज़्यादा है, तो एज अ रिजल्ट इसका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू सल्फाइड. So this is the final answer. This is the final answer. Clear? So I hope आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है. Yes? Very good. तो yeah, this is the solution for this.
सो आई होप आप लोगों को मैंने जो भी अभी तक समझाया आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुका है. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम टुडे. तो आज का लेक्चर ये पे फिनिश होता है. बट वन थिंग, तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया? वी हैव कवर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है. तो अभी तक आपको कोई भी डाउट्स हैं, यू आर फ्री टू पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो और यू कैन ईमेल मी. I always check my mailbox, the comments, and I always try to take up your questions in my next lectures. ठीक है guys? अच्छा, one more thing. If you guys have not subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel so that you guys don't miss any notifications and you guys are always informed जब भी हम कोई भी नया मटेरियल आप लोगों के लिए पोस्ट करते हैं. राइट? अच्छा, one more thing. प्लीज़ इफ़ यू गाइज लाइक टुडेज वीडियो, अगर आप लोगों को रियल में अच्छा लगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, देन प्लीज़ फील फ्री टू लाइक द वीडियो सो दैट इट मोटिवेट्स मी एंड इट मोटिवेट्स द टीम एज वेल. अच्छा, वन मोर थिंग, देयर इज़ अ अनाउंसमेंट कि आप लोगों को आप में से जिन लोगों को नहीं पता, इस चैनल पे पैरेलली देयर इज़ अनदर चैप्टर विच इज़ बीइंग टेकन अप बाय माई फादर विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग. तो इफ़ यू गाइज हैव नॉट सीन दैट, प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ आवर चैनल, वहाँ पे आपको दिख जाएगा. ठीक है? अच्छा, येस, देयर इज़ वन मोर अनाउंसमेंट एट द एंड, तो प्लीज़ बने रहिए एंड तक. जस्ट देयर इज़ अ स्मॉल अनाउंसमेंट एट द एंड. दैट ओके, हेलो एवरीवन. सो एक्चुअली मैनी ऑफ यू हैड आस्क्ड कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं व्हाट आर द रेफरेंसेस फॉर दैट और उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे. सो फॉर दैट आई एम क्लैरिफाइंग इट टुडे इटसेल्फ कि यू कैन फाइंड ऑल द रेफरेंसेस एंड ऑल द नोट्स जो भी हमने अभी तक पढ़ाया, मैंने या मेरे डैड समीर मायरा ने, उन्होंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है या आगे भी पढ़ाने वाले हैं, ऑल द नोट्स, ऑल द रेफरेंसेस वी आर टेकिंग फ्रॉम आवर बुक जो हम दोनों ने खुद कंपाइल किया है. It has been a really fun experience compiling this book for you guys, and the book name is The Ultimate Guide to Inorganic Chemistry by IITians, and it's compiled by both of us, Mr. Sameer Maira and me, Sampriti Maira. Basically, let me tell you, ये book किसके लिए है? The book is for all the students who are in currently class 11th, whether they're studying in CBSE or ICSE, or whether they're preparing for JEE Mains, JEE Advanced, KVPY, NEET, and any other competitive exams. Why? Because this book is absolutely suited for everyone, क्योंकि हमने इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर किया है. येट लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर बुक, बिकॉज आई कैन टेल इट विथ होल कॉन्फिडेंस कि ऐसी बुक आपको मार्केट में नहीं अवेलेबल होगी. नाउ व्हाई कैन आई से दिस विथ फुल कॉन्फिडेंस? दैट इज़ बिकॉज अभी आप केमिस्ट्री की कोई भी बुक उठाओगे मार्केट से, द थिंग इज़ यू विल ओपन अप अ चैप्टर, आपको एक टॉपिक पढ़ना है, देन यू हैव टू रीड अ लॉन्ग स्टोरी, आपको एक बड़ी सारी स्टोरी पढ़नी होगी, उसमें से आपको अपनी काम की लाइंस अंडरलाइन करनी होगी, देन आपको उसमें रीज़न ढूंढना होगा, अच्छा ये इफेक्ट है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेप्शन इसका कहाँ पे लिखा है. बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. बिकॉज सी एज अ JEE एस्पिरेंट मुझे भी पता है, जब तक ये बुक अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, जितनी बुक्स अवेलेबल हैं, द थिंग इज़ आपको एक टॉपिक के लिए यू हैव टू रेफर मल्टीपल बुक्स विच इज़ रियली टाइम कंज्यूमिंग, एंड एक सब्जेक्ट के लिए इतना एफर्ट जस्ट वर्थ इट नहीं होता है. सो दैट्स वाई बीइंग अ JEE एस्पिरेंट माई सेल्फ, आई नो वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी पीपल हैव टू फेस, टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उन सब चीज़ों को हमने दिमाग में रख के वी हैव कंपाइल्ड दिस बुक, एंड द थिंग इज़ व्हाई डू I recommend you to buy this book? The thing is, it is written by the people who have been there. I have been a JEE aspirant myself, and I know what is actually needed by the aspirants. It's concise, to the point, easy to understand with lots of examples. Everything which we have explained, even in my lectures or in my father's lectures, we always include examples, and we have been always concise. Okay? Second is it's multicolored, and the important concepts, reasons, exceptions, and the data in the tables, everything is colorful and it's highlighted too. So you don't need to
sit and underline each and every line. No, in that way we are saving your time by already highlighting and underlining the things which you need. And also this book serves as a textbook plus problem solving, जो normally नहीं होता, because we have to refer a book for reference and एक दूसरा हमें module करना होता है for questions. Not at all required, because इसमें आपका theory भी है plus questions भी है, right? And that's why I would recommend it highly for you guys, and please buy it ASAP. I would request you all. The link for the website could be found in the description box below, and in the website also in the description I have given the Amazon and Flipkart links जहाँ पे book available है. आप website पे भी check कर सकते हो, वहाँ पे भी links available है. Also if you guys want to preview the book before buying, उसका भी option है. So when you open the website, आपको यहाँ पे जो PDF लिखा है ना, वहाँ पे आप क्लिक करना and this will open up in a new window और आपको एक PDF मिलेगा, sample PDF. So there you can understand जो चीज़ें मैंने अभी तक बोली, why they are helpful for you guys. So you can see how multicolored, and ये जो notes वगैरह है, all the exceptions, everything have been colored. You know, you can see the things yourself. How concise it is. ये चीज़ें normally एक बड़ी story में लिखी होती हैं and it's just very time consuming. I've been there, I have read such things, मुझे पता है. See for yourself. देखो यहाँ पे रीज़न किस तरह से दिया हुआ है. We have not written a story. Everything is really concise, you know. Yeah, so that's all for today. Thank you all for your time and attention. Any questions, please comment in the comment box or you can email your doubts. Thank you.